हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग एंजॉय कर रहे होगे छुट्टियों को, एक्सेप्ट मी। बच्चों, लास्ट टाइम तक हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इन विच वी हैव डेराइव्ड द इक्वेशन to which we can calculate the electrical energy that is stored in capacitor in 2-3 equation in the form of 2-3 parameter like Q and C. Electrical potential energy in the form of Q and C, it is Q square by 2C, and in the form of Q and V it is half QV, and in the form of CV it is half CV square. So as per requirement in question, we can apply these equation. These all equation we have to memorize actually, so as to we can solve the problem easily with the help of these equation, in which energy stored in capacitor will be asked. Second thing, we already have told to you that next class we will discuss about the combination of capacitor, how a network can be solved, a network of capacitor can be solved. So for solving this type of question, let us the different type of combination, what should be the equivalent capacitance of combination of capacitor first of all. So पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हम combination of capacitor की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब कॉम्बिनेशन में दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक ऐसा है कि कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा जाए और फिर इस तरह से बैटरी कनेक्ट की जाए, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा जिसमें सभी कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को एक टर्मिनल से जोड़ा जाए और नेगेटिव प्लेट को दूसरे टर्मिनल से जोड़ के बैटरी से कनेक्ट किया जाए, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कब कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है नेटवर्क का और किस तरह के कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस घट रहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, we just have to recognize that if greater capacitance is required while we have a small capacitor, then what kind of combination is required, or if we have a larger capacitor and we required lower capacitance, then how it be connected. So this kind of question will be framed in this topic. First of all, let us how combination of capacitor is solved. Combination of capacitor. In combination of capacitor, first combination is series combination. Series combination. To identify the combination as series combination, the positive plate of a capacitor is connected to the negative plate of another capacitor. Such kind of combination is called series. If positive plate of a capacitor is connected to negative plate of another capacitor, अदर कैपेसिटर, अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। टू ए नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज। तो ये पहचान है कि अगर कॉम्बिनेशन का एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, सीरीज है। कुछ चीज़ें और होती हैं इस टाइप के कॉम्बिनेशन में, जैसे देखते हैं कैसे। जैसे एक कैपेसिटर ये है,
ये इसका सपोज पॉजिटिव टर्मिनल और ये एक इसका निगेटिव प्लेट है। ये निगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है। ये किस तरह से चार्जेज आते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज हाउ टू सीरीज कॉम्बिनेशन इज फॉर। सपोज दिस इज C1 कैपेसिटर, दिस इज C2 एंड C3 और इस तरह से कनेक्ट है। If we connected a battery like that with potential V, see how this connection is formed. Suppose battery is supplied Q charge, then Q charge is present at this plate because this is an isolated system. On charging by Q charge this plate, by induction equal amount of negative charge will be present here. And now see this thing, this is an isolated system and in isolated system net charge should be 0. अगर यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज है तो नो डाउट इतना पॉजिटिव Q चार्ज इस प्लेट पर होगा, तभी ये पूरा सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रल कंडीशन में होगा। तो एक चीज ये देखोगे कि अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, इस कैपेसिटर पे अगर चार्ज Q है तो यहाँ पर भी चार्ज Q ही होगा, यहाँ पर भी चार्ज Q ही होगा। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेज इज सेम, या ऐसा कह सकते हैं कि जो चार्ज यहाँ से सप्लाई होगा वही चार्ज यहाँ से होता हुआ फिर से निगेटिव टर्मिनल पे आएगा। दोनों बातें एक ही हैं। इट मीन्स चार्ज एट ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सेम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज चार्ज इन ईच कैपेसिटर is same in series combination. Actually we are studying about these all things in series combination, so we don't need to write again series combination. इस combination में चार्ज क्या होएगा, सेम रहेगा। दूसरी चीज, अब जबकि चार्ज सेम हो गया, कैपेसिटेंस अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई V। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग है। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, इसका V2 है, इसका V3। दूसरी बात क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा, अलग अलग होगा। रीजन क्या है, क्योंकि चार्ज सेम है बट कैपेसिटेंस अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। या कह सकते हो कि बैटरी ने अगर V वोल्ट सप्लाई किया तो कुछ यहाँ कंज्यूम होगा, कुछ यहाँ कंज्यूम होगा, कुछ यहाँ कंज्यूम होगा, क्योंकि कोई सा भी कंपोनेंट अगर सीरीज में होता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है। अब इसका हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। नेट कैपेसिटेंस के लिए अगर हम इसको मिला के इसके इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर C मान लेते हैं, अगर इन तीनों को मिलाने पर जो कैपेसिटेंस आता है उसका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट या C प्राइम, कुछ भी मान लें, और ये V वोल्ट की बैटरी यहाँ से सप्लाई कर दी। अब देखिए क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस पर V1, V2, V3 है तो नो डाउट ये तीनों मिलके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर होगा, V के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच।
जो सम में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम करने पर क्या आएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और हमने एज्यूम किया वो किसके बराबर हो गया, इस v के बराबर हो गया, सच दैट v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन, सिंस c इक्वल टू क्या होता है q बाई v, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा q बाई c। इसमें अप्लाई कर देते हैं, v किसका है, इस इक्विवेलेंट का, और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, तो क्या लिखेंगे हम c इक्विवेलेंट अपॉन v नेट पोटेंशियल इक्वल टू v1 की जगह पर कितना हो जाएगा, चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 बाई v। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बट क्या यहाँ पर चार्ज, ये देखो v इक्वल टू क्या है q बाई c, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि q बाई c लिखते हैं, ना कि इसकी v की जगह पे पुट करना है ना, तो q बाई c, तो यहाँ पर लिखेंगे q बाई c इक्विवेलेंट। v1 की जगह पर क्या होगा, चार्ज तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 की जगह पर q1 बाई c1। इसी तरह से v2 की जगह पर क्या हो जाएगा, q2 बाई c2। इसी तरह से v3 की जगह पर क्या हो जाएगा, q3 बाई c3। अब q1 q2 q3 सब में चार्ज क्या है, सेम है, तो मैं q1 q2 को हटा के q ही डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ। बात समझ में आई क्यों, क्योंकि चार्ज हमने पहले लिखा क्या होगा, सेम होगा, इसको विजुलाइज किया गया। अब देखो ये चार्जेस कैंसिल हो गए, यहाँ से हमको मिल रहा है क्या कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। It is totally differ as combination of resistor in series। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3 अप टू जितने भी कैपेसिटर जोड़े जाएंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में हमको 2 कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, तो हम उसमें लिखते हैं कि इफ, 2-3 बातें लिखते हैं। एक तो लिखते हैं कि इफ 2 कैपेसिटर of capacitance C1 and C2 are in series, अगर C1 और C2 सीरीज में होंगे then its equivalent उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 बाई c2। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा c1 प्लस c2 अपॉन c1 इंटू c2, या c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना मिल जाएगा, c1 इंटू c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो 2 के लिए फार्मूला ही याद रखें कि c इक्विवेलेंट इन सीरीज, 2 कैपेसिटर इन सीरीज, then equivalent capacitance will be C1 into C2 upon C1 plus C2। It should be memorized, ये बाय हार्ट याद रहना चाहिए ताकि तुरंत हम इसको अप्लाई कर सकें। दूसरी एक चीज़ और बात करेंगे कि अगर n कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए और सेम हो तब नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो मैं ये वाला रफ करूँगा इधर का, इसको पॉज करके इतना लिख लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगर n कैपेसिटर हैं और सेम है, उनको सीरीज में अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ n कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज देन इट्स इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी अप टू डॉट डॉट इन n कैपेसिटर।
तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू 1/c। तो सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये कितने नंबर हैं, n है, तो आ जाएगा n/c, या c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/n। यानी जो एक कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस, जो कलेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, n कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो एक कैपेसिटर से भी कम होगा। कितना आ रहा है, c/n। 2 होगा तो c/2। सपोज एक एक माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर हैं, उनको सीरीज में जोड़ दिया गया तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0.5 माइक्रोफेरेड। यानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते, इफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट्स कैपेसिटेंस इज डिक्रीजेस, या लोअर कैपेसिटेंस विल बी कम ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का जो कैपेसिटेंस होगा वो लोअर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ एनी वन कैपेसिटर। किसी एक कैपेसिटर से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सच दैट इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ एनी वन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन एनी कैपेसिटर। 2, 3, 4 जितने भी कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाएंगे, जो इक्विवेलेंट आएगा सब क्या होगा, उसमें किसी एक से भी छोटा आएगा। तो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट आइडिया है ये कि अगर हमारे पास लार्जर कैपेसिटर का है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है और उससे लोअर कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है, उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। दूसरी चीज, अगर हाई पोटेंशियल का बैटरी लगा है और कैपेसिटर वेरिएबल कम पोटेंशियल का है, ऐसे केस में भी क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। ध्यान दें कि अगर हमारे पास एक हाई टेंशन बैटरी है और हमारे पास जो कैपेसिटर रिक्वायर्ड है, जो हमारे पास कैपेसिटर अवेलेबल है, वो लो पोटेंशियल डिफरेंस को वियर कर सकता है। ऐसे केस में अगर डायरेक्टली कैपेसिटर जोड़ोगे तो उसके बर्न करने के चांसेस हैं। सो टू अवॉइड द बर्न ऑफ दिस कैपेसिटर, the capacitor should be connected in series, that's why potential difference is divided। potential difference क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन 2 चीज के लिए यूज किया जाता है। एक तो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करता है, यानी हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे लोअर पोटेंशियल डिफरेंस वाला कैपेसिटेंस वैल्यू अप्लाई किया जा सकता है। दूसरे, अगर हमारे पास हायर कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है और उससे लोअर कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होता है, तब भी हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने के ये 2 एडवांटेज हैं। तो ये कुछ क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। कुछ चीजें ध्यान रखोगे, चार्जेज जो होंगे सभी में, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर में क्या होंगे, चार्ज इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। नेट पोटेंशियल सारे कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल, सारे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा उनके सम के बराबर होगा। तीसरी बात कि अगर 2 कैपेसिटर है उसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो C1 C2/C1 + C2 डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे। चौथी बात है कि अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस लोअर होता है इक्विवेलेंट नेटवर्क का कंपेयर टू दैट ऑफ एनी वन कैपेसिटर। तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी। अब चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा इसका कॉम्बिनेशन सीखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको रख करेंगे पूरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमने बताया कि अगर सारे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक टर्मिनल से और निगेटिव प्लेट अलग टर्मिनल से जोड़ा जाता है बैटरी के, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अगर सारे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल एक टर्मिनल से जोड़ते C1 पॉजिटिव टर्मिनल एक थे और नेगेटिव टर्मिनल अलग से, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस तरह दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ से हम एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं 20 वोल्ट की। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल बोलते हैं। इसका कैपेसिटेंस सपोज C2, इसका कॉम्बिनेशन C3। अब एक चीज है कि अगर इस बैटरी ने Q चार्ज बनाया तो Q चार्ज को जाने के भी 3 रास्ते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तीनों से। तो चार्ज अब की बार सेम नहीं होने वाला। इस पर कुछ अलग चार्ज आएगा, इस पर कुछ अलग चार्ज आएगा, इस पर कुछ अलग चार्ज आएगा। यानी पहला पॉइंट क्या होगा? चार्जेज डिफरेंट रहेगा। इस पर Q1 रहेगा, इस पर Q2 रहेगा, इस पर Q3 रहेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई सा भी कंपोनेंट जोड़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर V ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं कि चार्जेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। चार्जेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। सब में क्या होगा? अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं तो चार्जेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। एंड थर्ड चीज, नेट चार्ज कितना होगा? जो बैटरी ने सपोज Q बनाया है तो नेट चार्ज क्या होगा? इन तीनों के चार्ज के सम के बराबर होगा। नेट चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन या नेटवर्क इज सम ऑफ चार्ज ऑन each कैपेसिटर। हम मानते हैं इन तीनों के बराबर का एक कैपेसिटर है C। जो ये नेटवर्क है, जो ये कॉम्बिनेशन है, इसका जो कुछ भी कैपेसिटेंस आता है उसको हम C मान लेते हैं या C इक्विवेलेंट मान लेते हैं। और ये वही बैटरी है। तो इस पर जो चार्ज गया होगा Q के बराबर गया होगा। इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम कितना मान ले रहे हैं? C इक्विवेलेंट मान ले रहे हैं। और वो किसके बराबर हो गया? C इक्विवेलेंट इन तीनों के बराबर हो गया। अब देखो ये जो चार्जेस Q1, Q2, Q3 है वो किसके बराबर होगा? नेट चार्ज Q के बराबर होगा। तो इसको हम लिखते हैं नेट चार्ज सच दैट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
फिर से आप कैपेसिटर की डेफिनेशन देखो, सिंस होता क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। यहाँ पर रखते हैं, ये Q किसके लिए है, इस इक्विवेलेंट वाले के लिए, तो Q की जगह पर क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, कैपेसिटेंस अलग है, इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। वी सब में कॉमन है, तो लिख पाओगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी पैरेलल में जोड़ते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आता है, डायरेक्ट सम के बराबर आता है। 2 जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2, 3 जोड़ेंगे तो ऐसा। अगर n कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको पैरेलल जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, इफ n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected in series, is connected in parallel, in parallel, अगर n कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू n इंटू C होगा। यानी पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ा जाएगा तो क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर के बराबर से बड़ा होगा। सपोज एक माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया गया, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वुड बी 2 माइक्रोफैरेड। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसे कैपेसिटर अवेलेबल हैं जिनका कैपेसिटेंस लोअर है, while we required a higher capacitance with that, so we should apply the parallel combination। अगर लोअर कैपेसिटेंस के कैपेसिटर अवेलेबल हैं और उससे हाई कैपेसिटेंस का हमको रिक्वायर्ड होता है सर्किट में, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो 2 तरह के बेसिकली कॉम्बिनेशन हैं, एक सीरीज है जिसमें कैपेसिटेंस का अमाउंट घटाया जाता है, घट जाता है नेट कैपेसिटेंस किसी एक इंडिविजुअल से, और पैरेलल में बढ़ जाता है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये सारी बातें ध्यान रख के ही हम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। अभी आज के लिए एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद कल कुछ एक नेक्स्ट क्लास में कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन भी लेंगे और कुछ एक अच्छे क्वेश्चन नेटवर्क भी लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ ट्रिक रहेगा। तो आज इस कंसेप्ट को थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी का एज्यूम करते हैं, इसको रफ कर दें। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, उसमें कुल 4 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर को कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। उस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, सब पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा गया है। ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से सर्किट बना है। पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन नेटवर्क दूसरी एक पहला पॉइंट तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये एक नेटवर्क दिया था, हंड्रेड माइक्रोफैरेड है इसका,
200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, हंड्रेड माइक्रोफैरड, ये भी 100 माइक्रोफैरड का है, और यहाँ पर 300 वोल्ट सप्लाई दी गई है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और फिर उसके बाद क्या करना है, सब पे अलग अलग चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है अप्रोच। किस तरह से अप्रोच करोगे, बड़े केयरफुली इसको देखोगे और इट बिकम वेरी इजी टू इवॉल्व इफ these all thing will be remember what we had studied before, and that is equivalent capacitance. When capacitor is connected in series and parallel, then it will be very easy, but before it approach is basically required. Approach should be proper, approach proper होना चाहिए। तो मैं इसको जिस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ अप्रोच पे ध्यान देना सब लोग को। सर्किट ये है, इस सर्किट में कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है, थोड़ा सा इसको चेंज किया जा सकता है। ये वाले को अगर हम यहाँ कर दें खींच के ऐसे, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। कैसे, इसको थोड़ा छोटा बनाने या रहने देते हैं, इसको हम इधर से ऐसे कर दें तो देखो ये वाला पॉइंट, इसको ये साइड अगर लाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 100 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, 100 माइक्रोफैरड, और इससे फिर ये इस तरह से जुड़ा है। दूसरे पॉइंट से देखिए यहाँ से क्या जुड़ा है, ये पॉइंट ये है। अब यहाँ से एक ऐसा जुड़ा है 100 माइक्रोफैरड, ये भी है। और यहाँ से ये वाले दो जुड़े हैं 200 माइक्रोफैरड। टू हंड्रेड के 2 माइक्रोफैरड यहाँ जुड़े। ये इस नेटवर्क को मैंने उसमें ट्रांसलेट कर दिया। ऐसा करने से एक चीज़ बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ये जो 200 के दो हैं ये सीरीज में। अब जबकि ये सीरीज में होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह पर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। हमने फार्मूला बताया था कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 × C2 / C1 + C2 होगा। तो इसकी जगह पर एक आ जाएगा और नेटवर्क कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 100, यहाँ पर देखोगे कि एक ये 100 है और इसकी जगह पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा और ये नेटवर्क कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मैं निकालता हूँ, C प्राइम लिखता हूँ। C प्राइम इक्वल टू 200, सपोज नाम भी लिख सकते हो, इसको C1 कर दो, इसको C2 कर दो, या एक काम करते हैं इसको C1 करते हैं, C2 C3 और इसको C4 करते हैं। C प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ C प्राइम इक्वल टू C1 और C2 का इक्विवेलेंट आएगा। और सीरीज रहता है तो क्या होता है C1 × C2 / C1 + C2। ये दोनों सीरीज में है यानी C2 × C3 / C2 + C3, और सभी क्या है 200 के हैं। तो C प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 × 200 / 200 + 200, 420,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 40,000। तो आ जाएगा ये 100 माइक्रोफैरड, या n कैपेसिटर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। 2 है तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। इफ n कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C/n। 2 है तो C/2, 200/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड।
अभी इसकी जगह पर आ गया C प्राइम, कितनी वैल्यू है 100, और ये क्या है C1 है और ये क्या है C4 है। अभी यहाँ से देख रहे हो कि C1 और C प्राइम कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। फिर से इसकी जगह पर एक आएगा C4, ये C4 हो गया, और इसकी जगह पर एक लिख देते हैं, C डबल प्राइम लिख देते हैं। C डबल प्राइम क्या है, C प्राइम और C1 का इक्विवेलेंट है जो कि पैरेलल में है। C डबल प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, C प्राइम प्लस C1, और C प्राइम कितना है 100 है, C1 भी कितना है 100 है, इक्वल टू हो जाएगा 200 माइक्रोफेरेड। इसकी जगह पर कितना आ गया 200 माइक्रोफेरेड आ गया, और ये C4 है, C4 कितना है 100 माइक्रोफेरेड का है। अब ये दोनों सीरीज में, अब जब सीरीज में है तब देखो इसकी जगह पर भी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C ट्रिपल प्राइम सपोज, और C ट्रिपल प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा C4 इंटू C डबल प्राइम अपॉन C4 प्लस C डबल प्राइम। एक 100 है और एक 200 है, तो देखो मैं लिखता हूँ कितना कि 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200, 20,000 बाई 300, यानी हो जाएगा 200 बाई 3 माइक्रोफेरेड। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200 बाई 3 माइक्रोफेरेड। ये आपका पहला आंसर है, कितना आया है 200 बाई 3 माइक्रोफेरेड। अब अप्रोच देखिए, इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया 200 बाई 3 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया 300 वोल्ट लगाया गया। यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट है एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये 300 वोल्ट है। अब सोचो कि इसका कैपेसिटेंस पता है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो चार्ज मिल सकता है क्या। चार्ज देखो कितना हो जाएगा Q ट्रिपल प्राइम जो आएगा, यानी इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। C हमारे पास कितना है 200 बाई 3 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रोफेरेड ही रहने देते हैं, इंटू 300 वोल्ट, या माइक्रोफेरेड को 10⁻⁻6 से करोगे कोई उसमें वो नहीं, ये इस पे कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, माइक्रोफेरेड को 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, 200 माइक्रोफेरेड मतलब कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, Q इक्वल टू C इंटू V, तो 200 बाई 3 माइक्रोफेरेड था वो, 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² फेरेड हो जाएगा, या सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं, कितना हो जाएगा 20,000 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा इसमें। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। हमने यहाँ पर क्या लगाया, कैपेसिटेंस का इक्वेशन लगा दिया, और उस इक्वेशन से हमने क्या पाया कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उस पर हमको चार्ज मिल गया। अब जबकि उस पर हमको चार्ज मिल गया तो अब इसके हेल्प से हम अदर पे भी चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे जरा सा देखना। इसके बाद वापस चलते हैं इस सर्किट में। ये कितना हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻² फेरेड कूलम चार्ज। अब ये दो सर्किट क्या है सीरीज में, और सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम होता है, यानी C4 पर चार्ज कितना हो जाएगा सेम आएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम किस पर बराबर हो जाएगा C4 इक्वल टू C डबल प्राइम।
इस पर भी इतना चार्ज आएगा, इस पर भी इतना चार्ज आएगा। अब चार्ज मिल गया है, इनके कैपेसिटेंस हमको पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 देखो कितना होगा। V इक्वल टू, यहां से देखोगे V इक्वल टू Q/C आता है। V इक्वल टू Q/C। Q आपको पता है, कितना पता है, 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन C कितना है, C4 100 माइक्रोफेरेड था, यानी 100 इंटू 10⁻⁻6। समझ में आ रही बात? 10⁻⁻6 और 100, तो इसको आप लिख सकते हो क्या कि 2, ये उधर जाएगा 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 +4, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 वोल्ट। एक बड़ी इंटरेस्टेड बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पर तो सिर्फ 300 वोल्ट लगाया गया था, तो यहाँ पे उससे कम या ज़्यादा भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। अभी आप देखेंगे यहाँ कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V4, कितना आ रहा है, C4 2 इंटू 10⁻2 वोल्ट, यानी 200 वोल्ट आ रहा है इस पर। C प्राइम पर भी निकाला जा सकता है सेम फार्मूला से। C प्राइम हमारे पास कितना है, 200 माइक्रोफेरेड है, तो V अक्रॉस C प्राइम जो होगा डबल प्राइम, वो कितना हो जाएगा, फिर से Q/C। Q कितना हमारे पास, 2 इंटू 10⁻⁻2 है, 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन C कितना है, 200 माइक्रोफेरेड, 200 इंटू 10⁻⁻6, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 10⁻2 फेरेड, यानी 100 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस दोनों का कितना, इतना है। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट। अब फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं, ये वाला टूट के 100 वोल्ट वाला टूट के किस में कन्वर्ट हो गया है, दो पैरेलल कैपेसिटेंस C1 और C प्राइम में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। याद करो हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब कोई सा भी कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इन सब पे कैपेसिटेंस मिल गए, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गए, तो चार्ज मिल सकते हैं। चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C भी होता है। C कितना है यहाँ पर, C1 100 है, तो देखिए हम लोग Q निकालते हैं, Q@1 निकालते हैं, कितना आ जाएगा, C कितना है 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना है 100, हमारे पास Q कितना आ जाएगा 10⁻4, ये होगा 10⁻6 ये है, तो 10⁻2 कूलाम हो जाएगा Q1। अच्छा, नेट चार्ज क्या था, 2 इंटू 10⁻2 था, तो 10⁻2 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10⁻2 भी हो जाएगा, यानी C प्राइम पर भी क्या हो जाएगा, Q प्राइम भी 10⁻2 कूलाम हो जाएगा। अब 10 टू देखना, ये C प्राइम फिर से क्या हुआ, दो कैपेसिटर सीरीज में टूटा है। सीरीज में जो कैपेसिटर होते हैं उनमें क्या होता है, चार्ज सेम होता है, यानी C2 और C3 पर चार्ज कितना होगा, 10⁻2 होगा, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, 10⁻2 होगा। अभी कैपेसिटेंस मिल गया और पोटेंशियल और क्या हो गया कि चार्ज आपको मिल गया, ये Q2 है और ये क्या है, Q3 है। ऐसे भी सीरीज में है तो चार्ज सेम होता है। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, चार्ज मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है। Q कितना है यहाँ पर, 200 Q कितना है, 10⁻2 कूलाम। कैपेसिटेंस कितना है, 200 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व कर सकते हो तो हो जाएगा 200 इंटू 10⁻4, ये हो जाएगा 10⁻2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6,
-4, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻² +2 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, यानी 0.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, 50 वोल्ट। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस भी बराबर है और चार्ज भी बराबर है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द नेटवर्क प्रॉब्लम। सारी चीज़ें निकल गई यहाँ पे। ये क्या है, इसका C4 था, V4 कितना आया था, सबसे पहले निकाला गया था V4 ये 200 वोल्ट। चार्ज कितना आया था Q4, 2 इंटू 10⁻² कूलम। इस पर देखो C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था। C2 पर देखो क्या है, C2 का कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैरड था। हो सकता है बुक में पिकोफैरड हो, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर V2 कितना आया है, V2 आया है हमारे पास 50 वोल्ट, और Q2 कितना आया है 10⁻² वोल्ट। यही सेम टू सेम किसके बराबर है, C3 का भी है सब कुछ। C1 का देखो कितना है, C1 का कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरड, और जो चीज़ें आप निकाल पाए C1 के लिए वो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन C1 पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 100 वोल्ट। V1 = 100 वोल्ट, वहाँ से देखो। और चार्ज कितना है, C1 पर चार्ज 10⁻² कूलम। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, नेटवर्क को इस तरह से बनाते जाना है, फिर वापस सारी क्वांटिटी निकालते जाना है। यहाँ तक पढ़ लेना है और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे में हम कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क लेके आएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और उससे कुछ एक प्रैक्टिस भी करने के लिए देंगे। तब तक इतना पढ़ेंगे सब लोग, और एक बार ज़रूर रिवाइज करिए। एवरी डे वीडियो को ज़रूर देखिए प्लीज़ सब लोग। थैंक यू।